Welcome to the workshop. After 2 days of incredible panel discussions that left us both laughing and crying, we thought a good way to wrap up would be to leave you with some of our and Coro's lessons on equity-centered research. This session would be led by Prerak from Dalberg Design and Sujata and Mumtaz from Coro. I will quickly introduce them before they take on the workshop. You all must have listened to Sujata in the previous session, but a quick introduction. She's the founder and director of Coro and has been actively involved in women's movement for over 3 decades. Mumtaz Sheikh's trajectory from being a victim of domestic violence to being figured in BBC's list of 100 influential women globally in the year 2018 indicates her commitment and motivation to combat violence against women. Mumtaz currently leads a 14,500 households program on changing social norms on violence against women that works with women and men and boys and girls. Mumtaz's understanding of community context, of women's issues, and her ability to take risks to stick to her gender equitable position makes her a better leader. Prerak is a director at Dalberg Design, where he leads engagements with a wide range of private and public sector clients, including Mastercard Foundation, the Bill and Melinda Gates Foundation, USAID, among others. His expertise lies in understanding deep user needs, attitudes and behaviors, and quickly building prototypes with a highly emotional quotient that can be tested in the real world. At Dalberg, Prerak often leads work in financial inclusion, AgTech, public health, including COVID-19, among others, across Asia and Africa. We are really glad to have you all here and share both Dalberg and Coro's insights on equity-centered research. This is a small effort to understand how we can be more inclusive in doing research that already is being done. I'll hand it to the three of you now to take it from here. It will be an interactive workshop, so do look to engage throughout the session. We'll have opportunities for people to come and speak and share their thoughts as well, but do engage with us on the chat as well. Thank you. Thanks a lot, Seerat. As always, wonderful introductions. Sujata ji, Mumtaz ji, it is an honor to be on the same stage with you. इसकी शुरुआत कर देते हैं. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा. आप लोगों को दिख रहा है प्रेजेंटेशन? कोई बस सीरत दिख रहा है तो आप हाँ बोल देंगे एक बार. जी. ओके, बहुत बढ़िया. तो इंट्रोडक्शन तो हो गए. Today's session will be a mix of Hindi and English. Hope that works for everyone. And आज का मुद्दा क्या है? आज मेन हम बात करना चाहते हैं इस विषय पे कि इक्विटी सेंटर्ड रिसर्च, कि हमें रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन कॉन्टेक्स्ट में और इक्विटेबल क्यों होना चाहिए और सोशल इम्पैक्ट सेक्टर डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए क्यों बहुत ही जरूरी है, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है थोड़े जो हमारे प्रैक्टिस में एकदम ही ग्राउंडेड है. आज एक वन वे लेक्चर नहीं है, ना ही कोई प्रेजेंटेशन है एक फाइनल सोल्यूशन का. एक स्टार्टिंग पॉइंट है इस जर्नी का, जो हम लोग आज प्रैक्टिशनर्स की तरह आपके सामने आए हैं, हमारे डेजिग्नेशंस और रोल्स बाहर रखते हुए. तो हम भी चाहेंगे कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेटिव तरीके से आए और अलग अलग पॉइंट पे आपके इनपुट्स हम लेंगे इस सेशन में, तो आप अच्छे से इसमें पार्ट लीजिए. सुजाता जी, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें? No, बिल्कुल नहीं. फाइन, एब्सोल्युटली. यही है कि इक्विटी सेंटर्ड रिसर्च हम बात करते हैं. एक्चुअली दैट्स काइंड ऑफ बज़वर्ड आल्सो, एंड व्हाट इट टेक्स इनटू प्रैक्टिस में उसको लाने के लिए, ग्राउंड में इस पे अमल करने के लिए हमें क्या करना, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये थोड़ा बहुत प्रिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, किस तरह से हमें सोचना चाहिए, किस लेंस से देखना चाहिए, इसका एक थोड़ा सा डिस्कशन सबके साथ करना चाहते हैं, जो थोड़ा अनुभव पे आधारित भी है. आज का एजेंडा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हम स्टार्ट करेंगे कि पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस में क्या बदलाव आ गया है लास्ट ईयर से. रिसर्चर्स की तरह हम कैसे अनलर्न हमें पहले करना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग एंड टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और ये टॉपिक्स, और इस तरफ हम जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं.
ये पूरे प्रेजेंटेशन में जो भी इमेजेस है कम्युनिटी के बाकी लोगों के उनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेके रखे गए हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट ले कोई भी स्क्रीन का तो प्लीज इसको इस कॉन्टेक्स्ट के बाहर कहीं पब्लिकली ना डालें, क्योंकि काफी कम्युनिटी के भी फोटोज है इसमें। तो सबसे पहले तो चलिए बात करते हैं कि लास्ट ईयर जब एकदम ही कोविड-19 की पूरी वेव आई, हम लोग जो रिसर्चर्स है, जो इंटरवेंशंस पे काम करते हैं, प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं अलग अलग जगहों पे कंट्री में, सब प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया। कोई भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया। और हमने क्या नोट किया कि कम्युनिटी से हम और दूर जाते गए, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस और रिस्क आने लगे, इसलिए हम वहां पे जाके इमर्जन नहीं कर सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, तो ट्रस्ट बनना मुश्किल हो गया। डिजिटल टूल्स आ गए, जैसे आज हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, जूम, स्काइप, व्हाट्सएप, इसके द्वारा हम रिसर्च करने लगे। यानी जिसके आई थिंक ये एहसास होना कि कम्युनिटी वी शुड ब्रिंग along community as partners. The realization of this, I would use a term हिंदी वाला, देर आए दुरुस्त आए, कि ये रियलाइजेशन हो गया तो अच्छा है बहुत, क्योंकि आई थिंक हाउ वी आर लुकिंग एट इट इज फ्रॉम टू डिफरेंट रूट्स। मुझे लगता है एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से हमें इसका सिग्निफिकेंस लगता है, बिकॉज वी एंडोज डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, इसको ये करते हैं, और दूसरी ओर से ये बॉटम अप पर्सपेक्टिव आया है जो लिव्ड रियलिटीज में ग्राउंडेड है। और इसका एहसास जो है कि कम्युनिटी के वॉइसेस इम्पोर्टेंट है, कम्युनिटी की नॉलेज इम्पोर्टेंट है, उसको रिसर्च या किसी भी सोशल चेंज की प्रोसेस में बहुत पुख्ता तरीके से इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो ये रिकग्निशन बॉटम अप से आया है, ग्रास रूट से आया है, and that is because of the lived realities. And I think actually what equity based research would do is match these two things, जहाँ पे theoretical framework भी है and grounded realities का understanding, lived realities का knowledge, etc., all that experience, they seamlessly integrate, I would say. And I would very purposely use this word seamlessly, कि उनका इंटीग्रेशन बहुत ही सहज तरीके से हुआ है इस तरह। तो उसी की बात और उसी के अनुभव हम आज शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब चलिए बात करते हैं, ये तो हमने काफी कॉन्सेप्चुअली बात किया कि अगर इसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करें तो ये कैसा दिखेगा। तो इस साल के शुरुआत में वी गॉट अ चांस टू ट्राई सम ऑफ दीज प्रिंसिपल्स एंड एक्शंस. So the context is since almost 2 years,
Dalberg is working with Project Concern International and Gates Foundation to try out innovative solutions to engage men for family planning and nutrition outcomes. And the idea is how can we have better agency for women in the household. इस बीच में जब हमारे प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए, कोविड-19 स्ट्रांगली एकदम वेव उसने पकड़ लिया और ये तो नॉन डिजिटल प्रोग्राम से, तो हमने सोचा हम इसे टेस्ट कैसे करें. ऐसा तो नहीं है प्रोग्राम अच्छा बन गया 1 साल लेके तो इम्प्लीमेंट कर दें. तो हमें पूरा री इन्वेंट करना पड़ा हमारा सोचने का तरीका. हम सोच रहे थे हम डिजाइनर्स हैं, हम रिसर्चर्स हैं, इम्प्लीमेंटर्स हैं, तो हम जाएंगे लोकल कम्युनिटी में, हम उनसे सवाल पूछेंगे क्योंकि समझ पाएंगे वो क्या कहना चाहते हैं. और हमने क्या किया इसमें कि हमने लोकल कम्युनिटी लीड्स को ट्रेन करने के लिए उनको हायर किया, ये प्रोग्राम समझाया. सबसे पहली बात, जब हमने ये प्रोग्राम समझाए, उन्होंने हमें वहीं के वहीं बहुत सारे अच्छे इनपुट्स दिए कि ये आपको इस तरीके से पेश कर सकते हो, ये आपने जो पूरा सर्विस मॉडल बनाया है ये आप थोड़ा ट्वीक कीजिए इस तरीके से. और एक बहुत इंटरेस्टिंग इनपुट आया. हम लोग देख रहे थे कि कहीं मेल लीड हो, कहीं फीमेल लीड हो वगैरह. उन्होंने बोला आप कपल्स हायर कीजिए, क्योंकि अगर आपको फैमिली प्लानिंग की बात करनी है तो हम जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम सबसे पहले जैसे चाय पे जाते हैं उनके घर पे, तो चाय पे ऐसे एक चर्चा का माहौल बनेगा. एक पूरा लगेगा कि नेबर्स आ गए हैं आसपास वाले और बैठ के चाय बिस्कुट खाते खाते हम बहुत सहलता से ये चीज समझा पाएंगे. ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया. और जैसे ही हमने ये 2 महीने में ये पूरी चीज ट्राई की, हमारा जो एंड रिजल्ट था, जो हम ऑलमोस्ट 1 साल से बना रहे थे, वो 2 महीने में हमें इतने रिच इनपुट्स मिले हैं. और ये आज एट स्केल हम लोग 10,000 लोगों के साथ ट्राई कर रहे हैं. और ये सारे इनपुट्स, कपल्स को हायर करना और जो चेंजेस कम्युनिटी ने दिए, वो हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं. और अब आगे जाके हम जितने भी ऐसे टेस्टिंग कर रहे हैं, हम इस मॉडल को हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो हमें लगा कि पैंडेमिक की वजह से हमारे हाथ बंद गए थे, तो नए बहुत बढ़िया रास्ते खुल गए. एंड स्लोली वी स्टार्टेड सीइंग कि इससे पहले कि हम कम्युनिटी को पार्टनर की तरह देखते थे कि एग्जीक्यूटर की तरह देखते थे, कि हमारी रिसर्च प्रैक्टिसेस कितनी एक्सट्रैक्टिव थी या कितनी नहीं थी, हम इस स्पेक्ट्रम में कहाँ थे. तो ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल उठने लगे इस बारे में. इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल है, तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये पैंडेमिक आपके इम्प्लीमेंटेशन और रिसर्च एफर्ट्स कम्युनिटीज के साथ को कैसे अफेक्ट किया है. तो आप प्लीज menti.com खोलिए और 54802005 पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. हम इसको लाइव प्रोजेक्ट करेंगे, थोड़े एक्सपीरियंस को देखते हैं और उससे थोड़ी बातचीत करते हैं. हमारे कोई और डालबर्ग के दोस्त है, वो लोग अगर इस कोड को चैट में भी टाइप कर दे. मैं वापस एक बार कोड को बताता हूँ, 54802005. सुजाता जी, जब तक रिजल्ट्स आते हैं, आप और मुमताज से भी सुनते हैं कि आपको कैसे अफेक्ट किया पैंडेमिक में. मुमताज, मुमताज आप बोलना चाहोगे? फिर से बोलेंगे पेरेकची, मैं थोडा पॅन्डेमिक सुन नाही, पॅन्डेमिक मध्ये म्हणजे एक ह्या कोविडच्या ह्याचं इम्पॅक्ट कसं झाला, आपल्यावर काय इम्पॅक्ट झाला का इंटरव्हेन्शन? बिल्कुल, जैसे सभी के साथ हुआ है वैसे हमारे साथ भी हुआ है. लेकिन एक बात अच्छी रही है इस पूरे पेंडेमिक में कि बहुत सारी चीज़ें नई हमने सीखी भी है. और साथ ही में क्योंकि हम ग्रास रूट में सभी काम करते हैं, तो उसका असर होते हुए भी हम लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से दिल से जुड़े रहे. ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी रही, क्योंकि
रोज़ उनके साथ बात करना, उनके साथ हम हैं ये एहसास दिलाना, ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे। रिलीफ के काम के साथ साथ ये भी हम कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हम उनसे जानने की कोशिश भी कर रहे थे कि वो अब इस हालात से कैसे गुजर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनके ऊपर असर कर रही है। तो ये सारा तो अनुभव इसमें रहा। अगर सुजाता जी कुछ ऐड करना। एक्चुअली एंड सिंस कोरो इज वर्किंग ऑन जेंडर इक्वालिटी के जो इश्यूज है इसमें, तो वर्ल्ड ओवर जैसे सबको अभी पता है कि को पैंडेमिक के दरम्यान जेंडर इनइक्वालिटीज और भी गहरी हो गई है। तो उस पर हमने एक छोटा सा रिसर्च भी किया था, कुछ पुरुष और महिला और यंग पीपल और लड़के छोटे बच्चे भी, उनके साथ बात करके कि किस तरह से वो जेंडर इनइक्वालिटीज वाइडन हो गई है, वो गैप वाइडन हो गई है, इसका मतलब क्या है ग्रास रूट्स पे, इसका मतलब क्या लगता है। इस तरह का एक रिसर्च भी हमने किया था। राइट, थैंक यू सुजाता जी और मुमताज जी। क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? नहीं, बहुत छोटा, आई मीन कांट रीड एनीथिंग। ओके, सीरत अनाहिता आपको दिख रहा है? यस, राइट। जो थोड़े रिस्पॉन्सेज आने लगे, आई एम अज्यूमिंग आपको स्क्रीन दिख रहा है, जो काफी हाँ, इंटरेस्टिंग है। एक जैसे जो बात कर रहा है कि कम्युनिटी में हम कोविड स्प्रेड कर देंगे अगर ट्राइबल पॉपुलेशन है, रिमोट पॉपुलेशन है, कि हम चले गए तो। दूसरा एक दिख रहा है कि कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मुश्किल हो गया है, राइट? सडनली एकदम सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप्स करना, कोलैबोरेशंस करना, ये काफी मुश्किल लग रहा है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि नए मेथड्स चाहिए कि कैसे रिलेशनशिप बनाए रखे एंड ऑथेंटिक इनपुट्स और डेटा पॉइंट्स आए। आपको क्या लग रहा है सुजाता जी? या बिल्कुल। और मुझे लगता है सभी जो डेवलपमेंट सेक्टर में ग्रास रूट्स पे काम करने वाले लोग हैं या किसी भी तरह का इंटरवेंशन करने वाले लोग हैं, वो ये मानेंगे कि एक्चुअली देयर इज नो बाईपास फॉर पर्सनल रिएक्शन, इन पर्सन रिएक्शन। तो सब लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पर्सनली मिलते हो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती, स्पिरिट और होप भी एक्सचेंज होते हैं उसमें। लेकिन वो दायरा बिल्कुल बंद हो गया अभी इसमें। सो एक्चुअली द पर्सन सेइंग कि हमें न्यू मेथड्स ये करने चाहिए इंटरेक्ट करने के इसमें। ऑफ कोर्स द टेक्नोलॉजी हैज कम टू हेल्प, जूम है। सो जैसे मुमताज बोल रही थी, एक बात अच्छी होगी कि पीपल हैव बिकम really they have got acquainted with the technology and they are using technology even in remote area. फॉर एग्जाम्पल इसके पहले भी अभी जो सेशन हुआ था हमने किया, तो गढ़चिरौली के किसी एकदम रिमोट प्लेस पे हमारी बहन बैठी थी जो इस चर्चा में शामिल हो गई। एंड अच्छा तरह से लाइक शी सीम टू बी वेरी कॉन्फिडेंट विद द टेक्नोलॉजी। तो ये थोड़ा फायदा हुआ। But yeah, there are many challenges that pandemic has raised, and primarily because of the mobility restrictions, because of the scare and fear that we all have of spreading the disease or getting the disease, both. हाँ, एक काफी भी और भी टूल्स के बारे में भी काफी लोग बात कर रहे हैं। तो इस सेशन के बाद हम जरूर मंडे आपके साथ थोड़े और टूल्स जो हम यूज कर रहे हैं डेफिनेटली शेयर करेंगे कि रिमोटली कैसे काम कर रहे हैं या पार्टनर कैसे कर रहे हैं। बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग नुआंस पॉइंट देखा मैंने कि जब हम पार्टनर करते हैं कम्युनिटी के साथ तो वहां पे भी बायसेस रहते हैं, राइट? जैसे हमारे बायस होते हैं, तो हाउ डू वी वर्क अराउंड दैट, स्पेशली जब मार्जिनलाइज पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ये भी काफी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। तो मैं क्या करूंगा? Yeah, actually, can we ask the person to share more about this? Yeah. I mean, if that's possible.
दैट वुड बी नाइस। अगर जिसने ये पॉइंट लिखा है बायसेस के बारे में, कम्युनिटी और मार्जिनलाइज सेक्शन के साथ काम करने के बारे में, क्या वो थोड़ा शेयर कर सकता है 1-2 मिनट में? अगर आप अपने हाथ रेज करेंगे, रेज हैंड्स जो फंक्शन है, तो मैं आपको स्पीकिंग राइट्स देती हूँ। हाँ। लगता है सुजाता जी हमें पता नहीं चल रहा है किसने इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा था, तो वी कैन अभी के लिए शायद कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, Sure. एक बार और कंफर्म कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? ओके। तो अब हम थोड़ा बात करते हैं कि ठीक है, काफी सारी चीजें जो हमें आज तक पता थी एज अ रिसर्चर, दे आर नॉट वर्किंग आउट एनी मोर, इवन एज इम्प्लीमेंटर और प्रैक्टिशनर्स इन डेवलपमेंट सेक्टर. So where do we go from here? And Sujata ji, Mumtaz ji will take us through this journey. What does it mean to unlearn in this stage? Yeah. Actually, this is no prescription. First of all, मैं और मुमताज की हम ये नहीं कह रहे कि यही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए. एक्चुअली ये हमने जिसे अपनाया है वो एक तरीका है उसमें, और भी तरीके, एंड आई एम श्योर ग्लोबली पीपल आर रियली वर्किंग ऑन दिस कि ये इक्विटी बेस्ड रिसर्च कैसे किया जाए, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लिया जाए. सो मेनी पीपल मस्ट बी वर्किंग ऑन दैट. सो this is, so I just want to make it no way prescriptive, anyway prescriptive to that. तो एक बात हम बिल्कुल शेयर करना चाहेंगे आप सबसे कि एक्चुअली वी टॉक ऑफ रिसर्च, वी टॉक ऑफ हमें ये देखना चाहिए कि दैट डजंट रिमेन एज अ जस्ट लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. सिर्फ वर्ड्स में वो नहीं है, सिर्फ टोकनिज्म में हम नहीं कर रहे कि जस्ट वी वांट टू से. सो एक्चुअली there is lot of learning that we found, that lot of learning that the researcher will have to do, you know, kind of. And learning is primarily unlearning what we have learned, क्योंकि हम थोड़े से फॉर्मल नॉलेज एजुकेशन के सेटअप से आते हैं. फॉर्मल वर्ड्स हमको मालूम होते हैं, वी नो फॉर्मल वर्ड्स, वी नो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा, and we try and apply them as they are today without acknowledging the diversity in the context, without acknowledging other kind of diversities. And actually, especially in Indian context, diversities are huge. Actually, embracing all those diversities is almost impossible for any researcher. तो इसका अनुभव होना और ये बात दिमाग में रखना मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है. एंड वी हैव ऑल्सो इस स्लाइड में हमने कुछ पॉइंट्स ये दिए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर वी रियली थिंक दैट द कम्युनिटीज आर नॉट द डेटा रिसोर्स, अगर हम उनको एक डेटा रिसोर्स की तरह एक कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उससे हमको कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, इस तरह से अगर देखेंगे तो दैट रिसर्च कैन नेवर बी एन इक्विटी बेस्ड रिसर्च, बिकॉज इक्वालिटी की वैल्यू है ही नहीं वहाँ पे. वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट समथिंग. सो वो माइंडसेट हमारा है क्या? वेदर वी रियली सी दैट देयर इज abundant knowledge at the grassroots. Words are different, expressions are different, but there is knowledge, there is wisdom. So how do we integrate that wisdom? And I use that word very intentionally in our last conversations, Prerak. Seamless कि जैसे आप किसी पे उपकार नहीं कर रहे actually, or you are not doing it by force, you are doing it to make something beautiful, bigger and very relevant to the development sector. तो इस
माइंडसेट से क्या हम जा सकते हैं. सो और अगर हम सभी बातें करते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट सब्जेक्टिविटीज इन द रिसर्च. We understand there are subjectivities, but our research are quite often very objective, very rigid. The methods that we use are like very close-ended kind of thing. तो उस पे हम गौर कर सकते हैं क्या, हाउ डू वी क्रिएट दैट स्पेस वेयर कम्युनिटी पीपल कैन फ्रीली, फ्रैंकली, फ्लूइडली एक्सप्रेस what they want to express. और उसमें तो इस तरीके से जो हमारी methodology में भी we can, I don't think we can go with completely a very rigid and pre-decided methodology. जब हम community में काम करते हैं तो we need to see the community context. We need to see, क्योंकि कहीं पे खासकर मैंने community में देखा है मौखिक ability बहुत है, oral, लोग बोलना ज्यादा पसंद करते हैं. There you can't go with structured written questionnaire, you know. तो ये छोटी छोटी बातें हैं, but actually उसमें community context को हमें समझना भी जरूरी है. So actually we tried to put down together कि जैसे from align with client, funder, academic on objectives, approach and mobilize team. इससे हटके हमें build humility, assess bias and plan for community engagement. And planning के दरमियान से ही, right from the planning, how can we involve community, how can we engage community, ये बहुत देखना जरूरी है. वरना बहुत बार रिसर्च में हमारा फ्रेमवर्क, हमारे क्वेश्चनर, everything is ready. Actually most often our outcomes are also ready in our mind, and then we go to community and say कि अभी ये क्वेश्चनर भर के दो or something. The second is assess landscape and define solutions, opportunity space. उससे हटके partner with community to define priorities and reframe project context. We need to facilitate participatory research, ideation and prototyping with community partners. We need to co-design. Actually co-design, co-create is the term that I really like personally, and also we organizationally, कि जहाँ पे हम मिल के कुछ अलग सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Can we co-design interventions rather than prescribing our recommendations? Because whatever we recommend, whatever is the recommendation of the research, has to be relevant to the community, has to be feasible for the community. So actually co-designing always helps, even monitoring, evaluation, learning plan, and prioritizing community preferences and ownership. Co-develop recommendation for scaling intervention with community ownership. So primarily it means that community becomes an integral and central part to all the processes that we are doing in the research. थैंक यू सो मच सुजाता जी. मैं इसमें बस दो ही चीज ऐड करना चाहूंगा कि कई लोगों ने बोला था कि मेंटी पोल में कि कैसे करें ये काम अभी कम्युनिटीज के साथ. तो एक है हम अपने टीम मेंबर्स और ऑफिसेज में रिमोट टूल्स में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना. और कई लोग इंटरनेट अलाउंस दे रहे हैं, नए कैमराज लेने के लिए लोगों को बोल रहे हैं, रिमोट काम हो, मीरो, म्यूरल, ऐसे सब, गूगल स्लाइड, सब ऑनलाइन टूल्स यूज कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं खुद के टीम मेंबर्स को. ये सेम चीज हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमें कम्युनिटी के साथ अब इस पैंडेमिक वाले दुनिया में काम करना है और को क्रिएट करना है, तो वो कितना समय और इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, जो हमें करना पड़ेगा अपफ्रंट, अगर हम उनको सच में पार्टनर मानते हैं और ना ही सिर्फ बेनिफिशियरी या एग्जीक्यूटर्स की तरह देखते हैं. तो हमें उसके लिए बजट करना पड़ेगा, ना सिर्फ पैसा बट ऑल्सो टाइम. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट है कि हमें ये सारा, अगर आप प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं तो प्रोजेक्ट में उसका टाइम होना चाहिए. अगर आप लंबे प्रोग्राम्स पे काम करते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में इन चीजों का टाइम और बजट दोनों होना चाहिए. और उसमें प्रेरक एक लर्निंग माइंडसेट की भी बहुत जरूरत है. You know, you should have learning mindset first of all. Like the researcher should never think that मुझे तो सब पता ही है, बस मैं ये assess कर रहा हूँ community में क्या हो रहा है, this type of. Actually, because there is so much to learn, and quite often I've seen it shakes your beliefs, your own beliefs. जब आप
सच में कम्युनिटी की आवाज सुनते हो, सच में कम्युनिटी में क्या हो रहा है उसे देखने की कोशिश करते हो, तो आवर फ्रेमवर्क्स गेट शेकन, वी गेट अनसेटल्ड. So unsettling is important, and we should be willing to get unsettled. We should be willing to learn new things completely that could probably dismantle the framework that we have gone with. तो वो बहुत ढाढ़स का काम है शायद. एकदम एकदम सच बात बोली आपने सुजाता जी। और इसी पे अगर आप थोड़ा और एक्सपांड कर सके, जब हम इस स्लाइड पे, जो आपने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रखे हैं, आपने और मुमताज जी ने, जब हम चर्चा कर रहे थे पिछले हफ्ते इसके बारे में, आपने काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें बताई थी। तो अगर आप दर्शकों को भी अभी बता पाए। हाँ, एक्चुअली मैं और मुमताज दोनों भी एक और हमारे और 7 साथी थे, 6 साथी थे, हम 8 लोगों ने मिलकर एक रिसर्च किया। वो उसका बैकड्रॉप है, जो भी हम बात कर रहे हैं दोनों, उसका बैकड्रॉप वो रिसर्च है. एंड दैट रिसर्च वाज फैसिलिटेटेड बाय मी बट विथ 7 ग्रासरूट्स को रिसर्चर्स, और हमने मीनिंग्स ऑफ एम्पावरमेंट पे रिसर्च किया. और ये देखा कि क्या लगता है ग्रासरूट्स में हम एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या करते हैं, एंड वी कलेक्टिवली शेयर्ड अवर लाइफ नैरेटिव्स एंड कलेक्टिवली एनालाइज देम. तो एक अलग तरीके का मेथोडोलॉजी भी हमने, विच is known as feminist cooperative inquiry, वो किया था. तो our observations and me and मुमताज जो अभी बोलेंगे वो उस रिसर्च के अनुभव पे भी बेस्ड है. तो एक बात मुझे लगती है कि लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्ट्स जो है, यानी actually if we really go in the community with very formal language, I would say even jargons that we all have learned in the formal educational institution etc, तो लोगों को वो समझते नहीं, बिल्कुल समझते नहीं, because they haven't gone through that formal education. तो we need to really mind our language, और किस तरह से हम simplify उसको कर सकते हैं ताकि जो सामने वाले से हम बात कर रहे हैं उसे वो एक्सेस हो जाए, हम क्या कह रहे हैं वो समझ जाए, वो एक्सेस हो जाए. तो ये बात बहुत जरूरी है. और मैं एक उसमें उदाहरण भी देना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एंड it's not only about the language, it's also about the concept, because grassroots में लोगों की अपने अनुभव से तैयार हुए आइडिएशन बहुत रहते हैं, उनका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन अलग रहता है. डू वी रिस्पेक्ट दैट? डू वी अंडरस्टैंड दैट? डू वी गिव अवर ईयर टू दैट? डू वी रिकग्नाइज दैट एंड डू वी रिस्पेक्ट दैट? सो ये बातें हैं. तो मैं एक एग्जाम्पल आप सबको बताना चाहूंगी. हालांकि हम एम्पावरमेंट पे रिसर्च कर रहे थे, विमेन एम्पावरमेंट पे, तो एम्पावरमेंट के दायरे में एजेंसी, चॉइस, ये शब्द बहुत आते हैं. लाइक, एंड वी बिलीव दैट at every point we make a choice between two things. If there are two alternatives or many alternatives available to us, and if we choose one of them, then that's like making choice, and there lies the agency etc. तो एक्चुअली हम जब ये रिसर्च कर रहे थे तो हमारी सहेली है, उसका नाम विनया है, आज वो तो नहीं आ पाई, लेकिन उसने जब कहा, मुझे वो बात बिल्कुल दिमाग में बैठ गई है कि she says actually choosing one of the two words thing and calling it a choice is bizarre. मैंने वो, the concept of agency and choice are bizarre in their presumptions of choice making among a few two worst options. Because उसने ये कहा कि जब आप उससे बाहर आते हो और रिट्रोस्पेक्टिवली देखते हो तो यू कैन कॉल इट चॉइस, बट व्हेन यू आर इन इट, इट इज टोटल वायलेंस. तो ये जो लेंस है, एक्चुअली शी हैड हर से on what is agency, what is choice, and whether even the luxury of making choice is available to the grassroots people, to the most marginalized people. She comes from Matang community, you know, scheduled caste में Matang आता है वहाँ से, और she comes from very poor and rural background of marginalized community. तो जब वो अपने हुए उसके जो बीती है, उसका व्यवहार, उसके साथ जो व्यवहार हुआ है, उसको नरेट कर रही थी, तो वो बता रही थी कि कैसे चॉइस बोलोगे आप उसको. तो आई थिंक, can we really listen to these voices and then think of our ideas that have come from formal education about agency, about choice etc. तो ये एक बात मुझे लग रही थी. research processes actually quite often हम, suppose for example, including voices of marginalized people, we do maybe like to tick mark that we could do some interviews etc and say, we have talked to these people, we have talked to section of these people etc. But actually
you may talk to one person or you may talk to 100 people, from the same category. But whether this conversation has really helped you reflect on your own processes, कि उसमें से जो निकलता है, क्योंकि हम वो coming back to the drawing board, and just seeing what assumptions you have made and whether they stand true in this context, whether they stand true even after you hear these voices. Iska and make I always think personally that actually participatory processes do not exist by default. ये कह के कि मैं पार्टिसिपेटरी रिसर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसलिए रिसर्च पार्टिसिपेटरी नहीं होता. एक्चुअली यू हैव टू मेक इट पार्टिसिपेटरी. द रिसर्चर, और उसकी ज्यादा जिम्मेदारी रिसर्चर पे आती है कि हाउ डू यू थिंक ऑफ पार्टिसिपेशन, वेदर यू कॉन्शियसली इंटेंशनली ओपन अप एवरी विंडो that is possible for conversation, that is possible for dialogue. तो इस तरह की प्रोसेस के बारे में रिफ्लेक्ट करना ही है. एंड एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअली whether, so the presumption here is, and which is true, we believe, Mumtaz इसके बारे में ज़्यादा बात करेगी बाद में, but actually the analysis is contained in what people say. If we go to find out the jargons and the language that we know in their narration, then it's difficult to get analysis from them, and then for us they will be merely data source. लेकिन अगर हम ठीक तरह से उनको सुनते हैं और उस एनालिसिस को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल एंड स्टॉप हियर कि अनवर जो एक लास्ट एक्चुअली हमारे पैनल में थी, तो जब हम ये रिसर्च की बात कर रहे थे एंड में कि क्या वैल्यूज है इस तरह का रिसर्च करने के लिए, रिसर्चर को क्या देखना चाहिए, सो शी सेड कि एक्चुअली ना जो ये काम कर रहा है उसको ना, उसने शी यूज ब्यूटीफुल एनालॉजी, उसने कहा कि समुंदर की तरह रहना चाहिए उसको, कि सबकी बातें सुने, सबको अपनाए. So actually she was talking about inclusiveness, she was talking about inclusivity when she said samundar. So if we would be trying to find out only that word inclusivity, तो हमको पता नहीं चलेगा. So what I want to bring home is the analysis is contained in what they say, very frankly, fluidly, freely, जो बोलते हैं, तो वो मौका तैयार करके देना चाहिए. एंड द रिसर्चर वुड नीड टू रियली आइडेंटिफाई दो स्पेसेस कि हाँ ये बात है और इसको एनालिसिस में लाना चाहिए. So these were few things that when we worked together, Prerak, me, Mumtaz, we worked together, we thought these were few things that we need to be attentive of, कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के बारे में हम कितने सतर्क है, प्रोसेसेस के बारे में हम कितने सतर्क है, और एनालिसिस को हम अपना काम कैसे देते हैं जो उनकी नरेशन में. थैंक यू सो मच सुजाता जी, एकदम इन डेप्थ इसके बारे में आपने बताया सबको. थोड़ा मुमताज जी के पास से भी हम ये सुनना चाहेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज को लेके. जी, एक तो पहले ये बताना चाहूँ, मतलब आगे जाने से पहले, कि यहाँ पे एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगी. जब सुजाता जी बोल रहे थे तो याद आया कि हम कैसे मतलब उनके शब्दों को तो लेते हैं, लेकिन जब कोई वो सजेस्ट करते हैं, या क्योंकि एक को रिसर्चर के तहत मैं भी थी, तो एक हमारी बात हो रही थी एनालिसिस के इसमें, और सुजाता जी ने उसमें लिखा था कि एनालिसिस करना या उसके सारे चीज़ें करना ये फॉर्मल एजुकेशन से आता है, और उसको क्योंकि वो एकेडमिक और इसमें से आता है और इसीलिए वो कर नहीं पाते. तो मैंने वहाँ पे उनको कहा था कि ऐसे नहीं है, ये एकेडमिक इससे आता है, ऐसे नहीं लगता, ये स्किल की बात है. अगर वो स्किल हमें मिल जाता है तो हम भी उस तरीके से आगे बिल्कुल जा सकते हैं. तो इसको आप फिर एक कंपार्टमेंट में मत डालो कि ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास एकेडमिक एजुकेशन होता है. तो ये बस मुझे यहाँ पे बिल्कुल. मुमताज, और तुम अनुभव बताना चाहोगी जी. इस रिसर्च को आपने कैसे देखा?
जी, बिल्कुल। तो जब हम बात कर रहे थे कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और इन सबको इंक्लूजन की जब हम बात कर रहे हैं और कैसे जाए, तो इसको रेफ़र करते हुए जो मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे थे, तो जब हमने शुरुआत की थी या हम भी काम कर रहे थे, तो हमेशा ऐसा एक लगता था कि एम्पावरमेंट एक कोई तो चीज़ है जो कहीं पे रखी है और बस हमें उसको लेना है, वहाँ तक पहुँचना है और हमारे सारे जो प्रयास होते थे, वो सारे बस उस तक पहुँचने के लिए और कितने लोगों को दिए, कितने लोगों ने लिए। ये जो सारी बातें ना, अगर उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँ कि कितनी बच्चियाँ स्कूल गई, कितने हेल्थ पोस्ट में महिलाएं जाने लगी, उसका अगर आंकड़ा हमें मिलता है तो देने वाले भी खुश हैं और लेने वाले भी खुश है। इस तरीके का माहौल एम्पावरमेंट के बारे में हमेशा से देखा जाता है या इस तरीके से ही जाना चाहिए, इस तरीके के राह दिखाते हैं। मगर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये तो अधूरा है, इसमें तो कुछ है। और जब हमने ये सब लोगों ने मिलकर रिसर्च किया, तब हमें लगा कि इसको जब हम ढूंढते हुए गए, तो हमें पता चला कि हर एक की एम्पावरमेंट की परिभाषा ही अलग है। उसको आप एक नजरिए में या एक कंपार्टमेंट में नहीं देख सकते। अगर उदाहरण दो तो किसी महिलाओं को घर से बाहर निकलना भी एम्पावरमेंट लग सकता है, तो किसी को वो क्या कहते हैं कि बड़ी ऑफिसर बन गई है या घर से बाहर जा रही है या वो पैसे कमा रही है, ये भी एम्पावरमेंट लग सकता है। तो हम सबको एक नज़र से नहीं देख सकते हैं। उसके हर एक की परिभाषा अलग है और हमें उसका रिस्पेक्ट करके उस हिसाब से हमें आगे जाना चाहिए। ये एक समझ में आया। और ये कैसे समझ में आ रहा था कि जो भी हम ये परिभाषा ढूंढ रहे थे, हम बात कर रहे थे, तो इसमें हमें अपने आप को ही अंदर से एक ताकत मिल रही थी, जिसको हम पावर विद इन का मुद्दा कहते हैं या पावर विद इन की बात कहते हैं। क्योंकि ये बदलाव जब तक अंदर से नहीं आता है, हम उसको एम्पावरमेंट के तहत नहीं देख सकते, क्योंकि वो सही मायने में एम्पावरमेंट नहीं होगी। वो फिर एक तरीके से होगा कि आपने किसी को कुछ दिया है और सामने वाले ने लिया है, और फिर वो बेनिफिशियरीज के इसमें हम चले जाएंगे, ऐसा एक लगता है। इसका अगर उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँ, तो इसके पहले भी बहुत सारे रिसर्च में हम सहभागी थे कि दलित मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति है, कम्युनिटी की क्या स्थिति है। और इसमें ऐसा था कि जानकारी लेने वाला एक जन था, जानकारी देने वाला एक जन था। जानकारी लेने वाले ने उस जानकारी का क्या किया, हमें अभी तक पता नहीं। देने वाले वो क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ पे क्या बर्ताव है, उसके बारे में पता नहीं। और दूसरा ये भी एक था कि जब जानकारी लेने कोई आता है, तो वो सामने वाले से ही सारी चीजें बात करते हैं, लेकिन खुद के मूल्य क्या है, खुद का बर्ताव क्या है, वो खुद इसको कैसे देखते हैं, इसके बारे में जानकारी देने वाले को कुछ पता नहीं होता है। तो मैं फिर से हमने जो रिसर्च किया है उसके ऊपर आऊंगी कि जब हम ये रिसर्च कर रहे थे, तो जो हम 7 लोग थे, वो जितनी जानकारी दे रहे थे उतनी ही जानकारी हम हमारे जो रिसर्चर थे उनकी भी ले रहे थे। तो वो बहुत इक्वली था, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था और हमें लग रहा था कि हम यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो सामने वाला भी उतने ही क्या कहते हैं, आईने की तरह, हम जिसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, उस तरीके से आपका रिलेशन नहीं होता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें आगे आएगी। क्योंकि वो जो कंट्रोल की बात होती है ना, कि आप कितना पूछोगे इसके ऊपर आपका कंट्रोल है, मैं कितना आपको जवाब दूंगी और वो कितना सच या कितना क्या होगा, इसका कंट्रोल मेरे पास है। तो इसको अगर हम देखते हैं, तो ये व्यवहार और ये जो ट्रांसपेरेंसी वाली बात है, ट्रस्ट का मुद्दा है, ये बहुत मायने रखता है। और बहुत बार जब रिसर्च होता है तो ये सारी चीजें स्किप हो जाती है या इन चीजों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। हम डेटा कलेक्ट किए और हम चले गए, ये एक मुद्दा होता है। तो इस अंतर को हम कैसे कम कर सकते हैं? एक हो सकता है, मतलब ऐसे लोग बोल सकते हैं कि हम साथ में 15-20 सालों से है इसलिए ये हुआ, लेकिन फिर भी हमारे सामने सवाल है
कि इस अंतर को हम कैसे कम करें, सामने वाले जो भी ग्रास रूट में जो भी हमें लोग डेटा देने वाले हैं, उनके साथ हम आगे कैसे इसको लेकर जाएं, उनको दोबारा जाके कैसे बताएं, ये जो सारी चीजें हैं, ये मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण मुद्दा है। Yeah. Actually, just adding to what Mumtaz says, you know, उसने एक बहुत अच्छा पॉइंट खेल में आया. नेसेसरीली क्वालिटेटिव रिसर्च में ही ये बात होनी चाहिए, ऐसे नहीं. इवन इफ यू आर डूइंग सर्विस, एक्चुअली आपके परिक्षेप में मार्जिनलाइज कम्युनिटी कहाँ पे, वेयर आर दे इन योर पर्सपेक्टिव, whenever you are doing any research, whether it is road building, whether it is displacement, whether it is medical accessible medical facility, whatever, जो भी. लेकिन इसका फायदा मोस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोगों को क्या मिलेगा और उसके लिए क्या करना चाहिए, वो आपके परिक्षेप में कितना स्ट्रांगली है, वो आपके क्वेश्चन में कितना स्ट्रांगली है, वो जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसमें कितना स्ट्रांगली है, और जब एनालाइज कर रहे हो आप तो वो लेंस आपका कितना स्ट्रांग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. एंड आई वुड डेफिनेटली से डूइंग इक्विटेबल रिसर्च इज अ पॉलिटिक्स, because it clearly tells you on which side you stand. किस साइड पे हो आप, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के साइड पे हो या दूसरे साइड पे हो. एंड आई purposely say it's a political activity in terms of, because taking sides is a political activity and it just tells you which side you are. Yeah. थैंक यू सो मच मुमताज जी एंड सुजाता जी. बहुत नुआंस्ड पॉइंट्स थे, और जैसे आज हमारा सेशन है कि और सवाल उठाएंगे हम, जवाब शायद कम ही दे पाएंगे. हाँ. हाँ, दो तीन चीज मैं यहाँ पे और हाईलाइट करना चाहूंगा कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को भी हम कैसे देखते, इसको भी थोड़ा ब्रॉडन करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. जैसे एल्डरली है, होमलेस है, सेक्सुअल माइनॉरिटीज है, बहुत बार ये लोग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में आते ही नहीं है, और हम ये सोचते ही नहीं है अगर कोई सर्वे कर रहे या रिसर्च कर रहे कि इनको कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि नंबर वाइज ये लोग बहुत कम परसेंटेज हो जाते हैं. और जब हमारे ज्यादातर कितने सारे स्टेट 50 मिलियन या 100 मिलियन प्लस पॉपुलेशन के हैं, 3-4% पॉपुलेशन अगर छूट जाए कोई सैम्पलिंग में तो एरर नहीं दिखता हमें वो, पर ये एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं. तो एक छोटा सा स्टोरी था. राइट साइड पे जो फोटो है, अंकिता और उनके गुरु है. हम आधार के बारे में रिसर्च कर रहे थे, स्टेट ऑफ आधार, और हम जानना चाहते थे कि उनको क्या दिक्कतें आ रही है, क्या चल रहा है. और खैर उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समय दिया वगैरह, और मैं बोला नहीं, आपका सारा डेटा हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, हम कोई सवाल का जवाब दे सकते हैं आपको. तो उन्होंने मुझे बोला, जो मैं बात आज तक नहीं भूला हूँ, आई थिंक 2 साल हो गए, कि हम एक ही चीज चाहते हैं कि आप हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल ना रखें, आप मेरी स्टोरी जितने प्लेटफॉर्म में हो सकती है बताइए, मैंने आपको अपने चीजें बता दी. खैर ठीक है, मुझे आधार मिल जाएगा, मेरी दिक्कतें कम होगी, बट हमारी दिक्कतें आधार से कई और गुना बढ़ के हैं, हमें लोग देखते ही नहीं है. उन्होंने बोला, आप हमारा इंटरव्यू करने आए, बोला लोग हमें देखते ही नहीं है, स्ट्रीट पे चल रहे हैं, लोग हमको अवॉइड करते हैं, हम काम मांगने जाते हैं, लोग हमको अवॉइड करते हैं, हम आधार सेंटर में जाते हैं, लोग हमको अवॉइड करते हैं. तो बल्कि जब हम एक सेट रिसर्च एजेंडा लेके गए थे कि हमको 3 चीज जाननी है, वो दिन हमको जितना सारा नॉलेज मिला, तो हम जिस हिसाब से रिकमेंडेशन लिखे वो भी बहुत बदल गया हमारे दिमाग में, कि हमें सिर्फ इतना नहीं लिखना कि अच्छा स्पेशल एक सेंटर सेट कर दो, है ना, क्योंकि सेट एजेंडा है तो सेट आंसर मिलेगा उसका. पर मुझे भी काफी रिफ्लेक्शन करते वक्त लगा कि मेरा भी कितना नैरो माइंडसेट था इस इंटरव्यू, और इसको मैं इंटरव्यू की तरह देख रहा था. और जबकि मुझे लगता था कि हाँ, क्योंकि हम आधार पर रिसर्च कर रहे थे, तो लोगों को सिर्फ आधार चाहिए, यही सबसे बेस्ट टॉपिक होगा बात करने में. तो ये थोड़ा शेयर करना चाहता था कि हमें भी कैसे फ्लेक्सिबल थोड़ा रहना चाहिए, और अनलर्न करके थोड़ा रीलर्न करने की काफी जरूरत है इस बारे में. एक्चुअली जस्ट प्रेरक, तुमने जो अभी कहा उसी से क्लू लेके मैं बता रही हूँ कि इवन इन आवर रिसर्च, यू नो, एक्चुअली एथिक्स ऑफ द रिसर्च के हिसाब से एनोनिमिटी बहुत महत्वपूर्ण है, नॉन डिस्क्लोजर बहुत महत्वपूर्ण है, एंड वी गो बाय दैट रिजिड नोशन, यू नो. लेकिन हमारे रिसर्च में जब हमने ये कंप्लीट किया और ये कह रहे थे, तो एवरीबडी इंसिस्टेड दैट देयर रियल नेम्स आर देयर.
because they wanted to claim that knowledge building space that they have created, कि knowledge नहीं तो वो रिसर्च सिर्फ मेरे नाम से जा सकता था, काइंड ऑफ थिंग। तो लेकिन हम सब ने फिर ये तय किया, सो वी हैव ऑल रियल नेम्स इन आवर रिसर्च एंड वी रियली फॉट विद एथिक्स के बारे में जो लोग बोल रहे थे उनके सामने कि क्यों हम ये कहते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो थॉट दैट इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ आवर फर्दर एम्पावरमेंट एज अ ग्रुप, लाइक देयर इज नो फियर। जैसे तुमने अभी बताया कि वो कह रहे थे कि हमारा नाम दो, बिकॉज दे वांटेड अदर पीपल टू नो देयर स्टोरीज, एंड सेम फीलिंग यहाँ पे भी था कि दे वांटेड टू नो, दे all the co-researchers wanted other people to know their stories, because actually उसमें hope और इसका message भी था, so they wanted to claim that knowledge building space and that spirit. जी हाँ, थैंक यू सो मच सुजाता जी शेयर करने के लिए। अब हम क्या चाहते हैं कि काफी सारा हमने बातें कही, हम थोड़ा आपसे सुनना चाहते हैं ऑडियंस में। तो वापस वही menti.com menti.com पे आप जाइए, कोड हमारे टीम मेंबर्स चैट में पेस्ट कर देंगे, हम अभी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करेंगे। और सबसे पहले इस क्वेश्चन पे हम आपका आंसर जानना चाहेंगे कि आपने कैसे अपने काम में, रिसर्च हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, प्रोग्राम का काम हो, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन या इक्विटी का लेंस आपने कैसे अप्लाई किया है। और तो 54802005 कोड है, प्लीज menti.com पे जाइए और ये कोड एंटर कीजिए। ओके, काफी फास्ट हो रहा है। जबकि बाकी लोग टाइप कर रहे हैं, थोड़े कमेंट्स आए सुजाता जी, हम थोड़ा देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पहला कमेंट मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा फॉन्ट मिल सकता है, कांट रीड इट। अब दिख रहा है सुजाता जी? ओके, थैंक यू सो मच। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिप्रेजेंटेशन सिर्फ हम बोल रहे हैं कि सैम्पलिंग रिसर्च सर्वे में होना चाहिए, पर सेम रिप्रेजेंटेशन टीम में भी होना चाहिए ना, जो ये काम कर रहा है। नहीं तो हम भी एक होमोजीनियस ओपिनियन के साथ ही जाएंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग है। जिसने अगर ये पॉइंट लिखा है वो अगर इफ यू कैन रेज योर हैंड, एयर मीट में एक ऑप्शन है, स्क्रीन पे दिखेगा रेज हैंड, तो हम आपको अनम्यूट करके 1 मिनट आपसे सुनना चाहेंगे ये बात। Right. Yeah. All important ones actually. है ना? And all important, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मेंटी तो वापस प्रोजेक्ट करता ही हूँ, पर ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी ने भी कुछ टाइप किए या कहना चाहेंगे तो आप अपना हैंड रेज करते हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा आपसे भी थोड़ा सुनना। अगर आप भले ही चाहे 30 सेकेंड्स अपना ओपिनियन बताए हमें, तो भी काफी अच्छा रहेगा। आप चैट में भी लिख सकते हैं, मैं बात करना चाहूंगा या चाहूंगी। अच्छा, दिव्या जी कुछ शेयर करना चाहेंगे?
हेलो नमस्ते। जो थर्ड कमेंट था, मैं एक्चुअली प्रोफेसर हूँ एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, और मैं इससे पहले भी सुजाता दी जो आपने पैनल रन किया था उसको सुन रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बिकॉज मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, तो आई थिंक बच्चों को जो हम तैयार कर रहे हैं, बिजनेस स्टूडेंट्स को, बहुत जरूरी है कि हम अपने क्लासरूम में भी वो डाइवर्सिटी का पर्सपेक्टिव लाएं। तो एक रिक्रूटमेंट जब स्टूडेंट्स का होता है, तो वहां भी एक डाइवर्सिटी लेंस यूज करना बहुत जरूरी है। एंड ये अच्छी बात है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें लड़कियों की संख्या भी ज्यादा है, और नॉट जस्ट द गर्ल्स, वी आर एक्चुअली अ इंक्लूसिव स्पेस। वी आर ट्राइंग हार्ड हाउ वी कैन मेक इट मोर इंक्लूसिव। वी आर नॉट परफेक्ट, बट वी आर एक्चुअली ट्राइंग इट। मैं एक सेंटर यहाँ चलाती हूँ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, जो कि सेंटर फॉर सोशल सेंसिटिविटी एंड एक्शन है, और उसके जरिए हम अपने एमबीए स्टूडेंट्स को यही सिखाना चाहते हैं कि आप अगर समाज में जाकर के कुछ काम करते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप उनका उद्धार कर रहे हैं, आप इसके जरिए कुछ सीख रहे हैं। और वो जो ह्यूमिलिटी है, दैट जो एम्पैथी है, कंपैशन है, यही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। सो आई थिंक ये जो पर्सपेक्टिव है, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू हम दे पा रहे हैं। तो थ्योरी तो हम बहुत पढ़ाते हैं क्लासरूम में, but I'm not speaking about any theory, because I personally believe that more than theories, the experience of going out. And मुमताज जी जो मैंने हिंदी में लिखा, वो मैं आपकी बात को बिल्कुल सहमत थी। I teach research here. मैं बच्चों को यहाँ रिसर्च पढ़ाती हूँ, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप ये सोच के मत जाओ कि ये क्वेश्चन आपने लिखा है तो सही है। आप ये देखो, पहले उनकी समस्याएं तो समझो। आप एसी रूम में बैठ करके क्वेश्चन नहीं तैयार कर सकते, पहले उनको जानना, उनकी स्थिति को जानना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आप समझिए। तो क्वालिटेटिव रिसर्च बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारा जो एमबीए स्टूडेंट है आजकल नंबर क्रंचिंग में बहुत तेज है। सो आई मीन टू से दे आर वेरी गुड इन एनालिटिकल स्किल्स, but they really lack those kind of soft skills, empathy, compassion, which are really necessary to bring change and positive social change. So I think I am really touched, and I really want to invite you people to come and speak to our students. So that would be really wonderful to give them a different perspective, though we are doing really hard. I'm based in Goa. We run our institute, Goa Institute of Management, so which is doing wonderful. So thank you I'm really glad to listen to your work. Thank you so much. थैंक यू सो मच दिव्या जी। मैं एक काम करता हूँ, ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है, और हम एनकरेज करेंगे बाकी लोगों को भी तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। मैं वापस प्रोजेक्ट करता हूँ, काफी सारे और नए रिस्पॉन्सेज आए मेंटी पे, तो यानी लोग काफी एक्टिव है अभी। वापस थोड़ा जूम करते हैं। किसी ने बायस का काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट डाला है, सुजाता जी। आपको दिख रहा है मुमताज जी कि अगर एक रिजिड फ्रेमवर्क मैं ऐसा रीड कर रहा हूँ कि लेके अगर हम प्राइमरी रिसर्च में अप्लाई करें तो बहुत ही बायसेस आते हैं, जैसे हमने अभी एजेंसी और चॉइस के काफी कंस्ट्रक्ट की बात की। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा मुझे कि रिसर्च फंड में उनका एक क्लॉज आ गया कि इंटरसेक्शनल जेंडर लेंस है, उसी को वो लोग प्रायोरिटाइज करेंगे ग्रांट देने के बारे में। अगर ये जिसमें लिखा है उससे अगर थोड़ा सुन सकते हैं, इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोग ग्रांट मेकर्स, फंडर्स का पर्सपेक्टिव भी सुनना चाहेंगे इसमें। Person who's written about managing a research fund, if you would like to say a little bit more, if you could please raise your hand. Or you could also feel free to respond a bit in the chat. Oh, sorry. I was on mute. This is Rashi. I work at the Nudge Foundation, and I had actually added that point. तो ये हमारी जर्नी है कि जब हमने पहले रिसर्च ग्रांट प्रॉपर्टी राइट्स पे लॉन्च किया था, कि हमने ये क्राइटेरिया नहीं डाला था कि जो जेंडर पे रिसर्च करते हैं वो रिसर्च का फोकस होना चाहिए। पर 2 साल के बाद हमें पता चला कि
And gender and property rights is such a big issue, and we didn't find enough research proposals in that area. So we thought that in an effort to pull or compel people to think about that a bit more, we would add this as a criteria, and it's been very successful. और हम ये नहीं कहते कि अगर है तो we will give you a grant, अगर नहीं है तो we won't give you a grant, but we would like everyone to think about it, so they can even integrate it after they have put in their proposals. So yeah. थैंक यू सो मच। और आई थिंक दिस इज वेरी मोटिवेशनल। बाकी भी अगर कोई फंडर्स वगैरह है इस कॉल पे कि इवन आप कैसे फंड कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट के कितना उसमें डाइवर्सिटी है, कितने इंटरसेक्शनल लेंस है, क्या क्या कैसे फोकस कर रहे हैं कि ना ही कि सिर्फ आउटपुट या आउटकम पे एक एंड लाइन हो। बहुत बार हम उसी से कलर्ड हो जाते हैं, राइट, कि एंड आउटपुट चाहिए X% इंक्रीज इन वाई, पर उसका जर्नी कैसे रहा है, आउटकम आने के बाद क्या कम्युनिटीज उसको सस्टेन कर पाएंगे उस प्रोग्राम को, वो इक्विटेबल है कि नहीं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी है। सो थैंक यू, दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग टू हियर। मे बी व्हाट वी कैन डू इज और एक क्वेश्चन पे थोड़े लोगों के आंसर्स ले सकते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप मेंटी पे ही है तो अब आपके स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन दिखेगा, अगर नहीं है तो www.menti.com पे आप जाइए और कोड जो टीम ने पोस्ट किया है 54802005 पे आप देख सकते हैं। और आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा अपने एंड पे जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है और नीचे एक बॉक्स होगा, तो प्लीज टाइप कीजिएगा कि आपको क्या मेन बैरियर्स आए जब आप इक्विटी सेंटर्ड रिसर्च या इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस तो आते ही होंगे ये वाली लेंस अप्लाई करने में। आई थिंक 2-3 चैलेंजेस मुमताज जी, सुजाता जी, हम भी शेयर कर सकते हैं जब तक लोग थोड़ा समय ले, 3-4 मिनट टाइप करें। एक मेन चैलेंज हम फेस कर रहे हैं इस चीज में है कि किसी ने भी सिमिलर रेस किया था कि जब हम कम्युनिटी के साथ पार्टनर कर रहे हैं, मान लीजिए रिसर्च करने में या कोई प्रोग्राम का प्रोटोटाइप टेस्ट करने में, तो हम वो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करें, अब वो कितना इक्विटी सेंटर्ड हो रहा है, इसमें काफी चैलेंज आ रहा है। हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि उसमें कैसे हम बायस थोड़ा मिनिमाइज करें। तो वो भी एक थोड़ा लर्निंग जर्नी, हम क्राइटेरिया वगैरह डाल रहे हैं कि अगर कम्युनिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं तो और वो रिसर्च कर रहे हैं और हम सिर्फ सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, तो वो कैसे बेहतर करें। आपने और मुमताज जी ने कुछ ऐसा फेस किए चैलेंजेस? एक्चुअली प्रेरक थोड़ा सा इसके बारे में जरा ज्यादा बोलोगे क्या, जस्ट टू लेट अस अंडरस्टैंड लाइक। हाँ श्योर। तो मान लीजिए जैसे हमने वो मेल एंगेजमेंट वाला केस स्टडी जो पहले बताया था ना, जहाँ पे हम फैमिली प्लानिंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि हम पार्टनर करने लगे कम्युनिटी मेंबर्स। डीप रूरल बिहार में काम था, 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट्स को मान लीजिए आप, और अब उनका सिलेक्शन कैसे करें हम, क्योंकि ट्रैवल तो कर नहीं रहे पैंडेमिक की वजह से। तो हम वहाँ पे लोकल एनजीओ के साथ रिलाई करने लगे उनकी एक्सपर्टीज पे, एंड दे हेल्प्ड अस, थोड़े कम्युनिटी लीड्स को ऑन बोर्ड लाने के लिए हेल्प किया, और वो हमारे लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो एक्चुअली थोड़ा इक्वल पार्टनरशिप हो, पर वो प्रोसेस को हम कैसे इक्विटेबल बनाएं, क्योंकि उसमें भी बायसेस है ना, कि जो मान लीजिए डिजिटल ट्रेनिंग के लिए सूटेड है वही आ पाएगा, उनके खुद के भी चैलेंजेस होंगे मार्जिनलाइज ग्रुप्स के साथ, तो उसमें हम कैसे काम करें, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी। राइट। आपने कोई चैलेंजेस फेस किए मुमताज जी? तो अभी मैं भी थोड़ा सा सोच रही हूँ उसके बारे में, अगर आप बोल दे तो फिर मैं। हाँ
एक्चुअली काफी रिस्पॉन्सेस भी आए इसके ऊपर। इसमें एक्चुअली हाँ सुजाता जी। सुजाता जी आप सुन पा रहे हैं? Okay, till we get Sujata ji back, I think there are some interesting responses here. अच्छा, I think ये थर्ड पॉइंट मुझे लगा सेम हम यही फेस कर रहे हैं, डाइवर्सिटी नहीं मिल पा रही है फील्ड में। आई थिंक हमारे नेटवर्क्स भी बहुत लिमिटेड हो गए हैं। हाँ हाँ एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक फर्स्ट स्टेप कैन बी एक्चुअली जब आप पार्टनर चूज करते हो, कम्युनिटी पार्टनर, सो हु दे विल ब्रिंग ऑन बोर्ड, you don't know that time, but you can actually look at the credentials of the partner that you are choosing, kind of कि उनका काम किस तरह का है, because and actually practice में किस तरह का है, because शायद बहुत बार ऐसे होता है कि लोग बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे, but then when actually you go into practicing that, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आने लगती है, because we realize कि वो एक मोनोकल्चर को किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं या डाइवर्सिटी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सो एक्चुअली आई थिंक द फर्स्ट थोड़ा सा थिंकिंग वहाँ पे भी होना चाहिए कि किन लोगों को आप पार्टनर्स कर रहे हैं, लाइक हु इज लीडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप में कौन लोग है उसकी, बिकॉज मोस्ट ऑफन ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप ये डोमिनेंट इनकी होती है, एंड देन अदर्स आर लाइक यस वाले हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हम पार्टनर करें, आई थिंक सम थॉट देयर could be helpful in that sense. And also keep raising these questions consistently कि जैसे कि अच्छा तो फिर इस डाइवर्सिटी को हम कैसे देखें, इंस्टेड ऑफ सेइंग आप कैसे देखते हो, अगर ये हम कैसे देखें, यहाँ इस डाइवर्सिटी के लोग हैं क्या, ये कॉन्टेक्स्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, सो आई थिंक कॉन्वर्सेशंस एंड डायलॉग प्रोबेबली विद दोस ऑर्गेनाइजेशंस। जी हाँ, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप भी बता रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया इससे रिलेटेड जो मैं देख रहा हूँ, जो बोल रहा है कि डिजिटल बैरियर कि टाइम लिमिटेड है और इक्विटी सेंटर्डनेस में टाइम चाहिए। तो कैसे करें? आई थिंक इनसे सुनना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा जिसने ये पॉइंट रखा है डिजिटल बैरियर के बारे में। तो अगर आप थोड़ा हमें बता पाए ऑडियंस में से। जिन्होंने डिजिटल बैरियर का पॉइंट रखा था ऑडियंस में से, अगर आप हमें 1 मिनट कुछ और थोड़ा बता पाएंगे इस बारे में। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट करके यहाँ स्टेज पे ऐड कर देंगे। हाँ नमित, आप प्लीज बताएंगे जरा इसके बारे में। Yes, actually I was working on a health project जहाँ पर we had to gain data about primary health care and how it's going in different places. तो अभी प्रॉब्लम यही आई थी कि पूरा प्राइमरी हेल्थ केयर लैंडस्केप मैप करने के लिए we need to be able to talk to different stakeholders who are accessing that primary health care center also. राइट, बट मैक्सिमम यही होता है कि वी वुड प्रोबेबली गेट वहाँ के मेडिकल ऑफिसर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड इट्स वेरी हार्ड टू एक्चुअली गेट पीपल हु आर एक्चुअली एक्सेसिंग हेल्थ केयर वहाँ पर। उनसे एक तो कनेक्ट करना मुश्किल है, एंड वंस वी डू इवन कनेक्ट तो वी हैव से लिमिटेड टाइम की वी हैड लाइक अ 6 month प्रोजेक्ट। अब 6 months में आप कितना ही डेटा निकाल पाओगे विद लाइक व्हेन यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन गेटिंग डेटा, so you already have say a set questionnaire as to इस चीज के आपको आंसर्स चाहिए। तो it was very difficult। तो पहले वही था कि we got in touch with वायनाड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, एंड वहाँ पर वही था, पहले तो लैंग्वेज बैरियर है, तो you have to find people who can speak the language, and post that
get to know what kind of communities actually stay there. So we were working with the tribal community there, and unki accessibility kis tarah. So it's very hard to find all of this when, say, they have a lack of digital. They have a digital barrier, and we only have, say, very limited time to create that bond to even understand their context in the first place. Yeah. So uh, we weren't able to particularly, matlab, we could get very limited options as to who we could talk to. So how do we increase the network in that case? First of all, तो नमिता जी, thank you so much for coming on stage and detail में share किया ये. First तो मैं reaffirm करना चाहूँगा कि this is a challenge we are facing across multiple of our projects. क्योंकि on the outset the methodology of partnering and using digital tool looks very cool, I would say, but practice में उसके काफी pitfalls है, जैसे आप बता रहे हैं कि ये connections कैसे. एक चीज जो हम लोग कर रहे हैं एटलीस्ट may not be applicable is even outside of our regular projects we are trying to expand our network with community members, because abhi tak we had networks with largely well known NGOs, civil society organizations, and the usual research agencies, or maybe individuals here and there from personal connects. We are trying के जो छोटे localized organizations है उनके साथ भी हम कनेक्ट बनाए रखें, और ये रेगुलर बेसिस पे कैसे कर सकते हैं ताकि वो भी एक्सट्रैक्टिव ना हो कि जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट आया, सडनली हम एकदम लोकल ऑर्गेनाइजेशन के पास गए तो उनको भी ट्रस्ट नहीं होगा ना, ये कौन आ रहा है बाहर से, हम इनके साथ कैसे जुड़े. और दूसरा एक हम जो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करें. जैसे अभी हम नागालैंड में मॉन में काम कर रहे हैं वैक्सीन कॉन्फिडेंस के ऊपर, तो काफी ट्रस्ट और नेटवर्क हमें एक्सेस हो रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम जुड़ पाए. और इनिशियली कोई काम नहीं हुआ, 2-3 हफ्ता हमें सिर्फ उनके साथ मीटिंग करनी पड़ी, पर एक बार वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो उनका बहुत हेल्प मिल रहा है हमें, क्योंकि वो एक बार बता दे कोई ऑर्गेनाइजेशन को तो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं. पर आई थिंक काफी कुछ फिगर आउट करना बाकी है इस स्पेस में, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है. सुजाता जी, आप मुमताज जी कुछ बताना चाहेंगे? टू क्विक थॉट्स एक्चुअली इसमें आते हैं. एक तो जैसे जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम वो ट्रस्ट बिल्डिंग और कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जाओ, तो जिसने इन्वेस्ट किया है उसके साथ पार्टनरशिप करिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड रियली पार्टनर विद देम. एंड जो हमने बात की कि जो अभी प्रेरक ने भी कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, नॉन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, ट्रेडिशनल का देखने की जरूरत नहीं. और दूसरा एक्चुअली आई थॉट इमीडिएटली कि दिस इज ऑल्सो सेइंग व्हाट अमिता सेड इज ऑल्सो टॉकिंग टू फंडर्स. वो कुछ उनको भी बता रहा है कि बिकॉज वी आर सो, हम इतने ऑब्सेस हो जाते हैं कि इतने टाइम लिमिट में, रिजिड मेट्रिक्स में, ये सब लाइक एवरीथिंग इज डिसाइडेड, और उसमें अगर हम कुछ ये करने की कोशिश करें, बिकॉज दिस काइंड ऑफ इक्विटी बेस्ड इस तरह के अगर रिसर्च हम करेंगे विच विल बी रियली मीनिंगफुल टू द कम्युनिटी एंड टू द डेवलपमेंट सेक्टर ओवरऑल, तो उसमें टाइम लगेगा. एक्चुअली टाइम बिल्डिंग ट्रस्ट में टाइम लगेगा, नए मैट्रिक्स डिजाइन में टाइम लगेगा, प्रायोरिटी अंडरस्टैंडिंग में लगेगा. जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि को डिजाइन करना, हमने को क्रिएशन की बात की, को डिजाइन, तो एक्चुअली इट विल ऑल टेक टाइम बिकॉज वहाँ पे कनेक्टेडनेस है, इंटेलेक्चुअल कनेक्टेडनेस है, ऑल्सो इमोशनल कनेक्टेडनेस है, तो दोनों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है. तो एक्चुअली दिस इज टेलिंग समथिंग टू फंडर्स ऑल्सो कि जस्ट डोंट प्रेशराइज विथ रिजिड मेट्रिक्स, रिजिड टाइम फ्रेमवर्क. थोड़ी इस तरह का काम करने के लिए काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बिकॉज यू मे ट्राई समथिंग आउट एंड यू रियलाइज दैट इट डजंट वर्क, वो वर्क नहीं हो रहा है. So you will try and you will do some innovation, you will do some adaptation. तो उसको अगर space नहीं है तो ये होता नहीं है. So that was immediate thought. Since there are also some funders on the call, so I thought on this session, so I thought actually इसकी भी हमें अलग तरह से advocacy शायद करनी चाहिए. You are on mute, Prerak. Sorry, technology and digital barrier यहीं पे.
थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए एंड टू द ऑडियंस आल्सो फॉर पार्टिसिपेटिंग. व्हाट वी विल डू इज अभी हम थोड़ा क्लोजर की तरफ जाते हैं इस सेशन के. हमारे पास और 15 मिनट है और अंत में एक दो और सवाल भी ले सकते हैं जैसे टाइम रहता है. तो अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन अगेन एंड होपफुली आपको अभी वापस देखना चाहिए मेरा प्रेजेंटेशन. हाँ जी हाँ, आई थिंक ये हो गया वापस प्रोजेक्ट. प्रेरक थोड़ा मैं सा इसको फॉन्ट स्टार्ट कर बढ़ाओगे? नहीं बढ़ता. नहीं, फुल अच्छा फुल ठीक है स्क्रीन है. नो प्रॉब्लम. अपॉलॉजी. मैं स्टार्ट करता हूँ. एनीवेज हम ये स्लाइड मंडे या ट्यूसडे तक शेयर कर देंगे सारे पार्टिसिपेंट बिल्कुल लिस्ट के साथ. प्री रजिस्टर भी किया है काफी लोगों ने. मैं इसको किक स्टार्ट कर सकता हूँ पर मुमताज जी और सुजाता जी आपसे थोड़ा इस पे सुनने में आया तो अच्छा रहेगा. हम क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अब काफी चर्चा की हमने. बोला पैंडेमिक से शुरुआत की, प्रोसेस डिस्टरप्ट हो गया है, नए टूल्स एंड टेक्निक्स भी मिले हमें डिजिटल और कम्युनिटी पार्टनरशिप में, पर उसमें भी चैलेंजेस है. और डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन एक भी लेंस उसमें से अप्लाई करना है तो उसके लिए और टाइम चाहिए. पर सबसे इम्पोर्टेंट हमने एक चीज जो पूरे इस सेशन में थ्रेड की तरह बात की कि एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है एज अ प्रैक्टिशनर इन दिस स्पेस. हमें लीडिंग के बजाय कैपेसिटी ब्रिजिंग की तरफ देखना है. हमें डिफाइन और प्रायोरिटाइज, यही मेरा एजेंडा है कि बदले को क्रिएशन की तरफ थोड़ा देखना है. हमें बेनिफिशियरी है, रिसर्च सब्जेक्ट है या ये डेटा कलेक्टर है की जगह पार्टनर की तरह देखना है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिस तरीके से जो लेंस से हम देखते हैं कम्युनिटी को, वो हमारे पूरे प्रोसेस में रिफ्लेक्ट होता है. और हम खुद को भी एक्सपर्ट मानते हैं, पर क्या हम सच में एक्सपर्ट्स हैं या हम सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं? बिकॉज हर कोई अपने राइट में एक्सपर्ट है, राइट? Community members have lived experience of all these complex topics, so they are experts in their own right. So who's an expert, who's not? These kind of questions. But pitfalls के बारे में बात करें उससे पहले मुमताज जी और सुजाता जी आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे इसके बारे में. दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट और हमने काफी सारा एक्चुअली मुमताज वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग पहले तुम में आप है? पहले बोलो फिर मैं मुझे लगता है हाँ प्लीज ऐड ना अगर मैंने कुछ मिस किया तो. एक्चुअली इसकी चर्चा भी हमने की बहुत सारी अभी पूरे सेशन में. यही बात ये दोहराई कि कहाँ से जैसे प्रेरक अभी बोल रहे थे कि हमें सब मालूम है और हम कुछ प्रूफ करने के लिए, यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए हम जा रहे हैं. इस तरह का माइंडसेट रहना गलत रहेगा. और आई लाइक द टर्म, यू नो, most often what we do is we try and do research on people or about people. Actually what is required is doing research with people. जब आप with की बात करते हो तो उनके कॉन्टेक्स्ट मेरे कॉन्टेक्स्ट हो जाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज मेरी प्रायोरिटीज हो जाती है, उनके स्किल्स मेरे स्किल्स हो जाते हैं, मेरे स्किल्स उनके स्किल्स हो जाते हैं. सो दैट ऑफ एक्सचेंज वहाँ पे आ जाता है. तो मुझे लगता है वो इसमें बहुत ज़रूरी है. And as Prerak, you rightly said, there is nothing like ignorance and knowledge. You know, knowledge is about knowing few things, and ignorance is about not knowing few things. So everybody is knowledgeable in their own दायरे में. सब knowledgeable है, हर एक का knowledge का ये दायरा अलग है. तो ये mindset, and actually that is really important कि ये mindset कि मैं लोगों के साथ में, और मैं वो अनसेटल होने का रिस्क लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ. क्योंकि ये सब बातें जब मैं कम्युनिटी से पार्टनर करूँगी, कम्युनिटी की आवाज़ सुनूंगी, तो बहुत अनसेटलमेंट वहाँ अनसेटल होता है. एंड एक्चुअली ट्रू एजुकेशन इज दैट विच अनसेटल्स यू एंड नॉट हेल्प्स यू टू मेंटेन द स्टेटस को, यू नो, काइंड ऑफ. तो वो अनसेटलिंग की रिस्क लेने के लिए हम तैयार है. वो मुझे लगता है वो महत्व का है. एंड दैट रिस्क इज एम्बेडेड when an outsider agency is going to work with community. ऐसा मुमताज. जब आप ये सारा बोल रहे थे, एक तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ
दूसरा ये मुझे ऐसा लग रहा था इसमें ऐड करने के लिए कि यहाँ पे लर्निंग वाली प्रोसेस ये टू वे होनी चाहिए, जो बहुत बार नहीं होती है। बहुत बार जैसे पेरेंट जी ने भी कहा कि हमें लगता है हमें सब पता है और बस उसके ऊपर हम ठप्पा मारने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जब आप जाते हो तो बहुत बार नहीं, आप हमेशा ही नई चीजें सीखते हो। उस नॉलेज को कैसे हम रिकग्नाइज करें, उसको हम कैसे लाए, ये भी एक मुद्दा यहाँ पे आता है। क्योंकि अगर माइंडसेट की ही अगर हम बात कर रहे हैं और हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई है, लेकिन उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं या उसको महत्व नहीं देते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे चीज़ों पे हमने चर्चा की तो वो ज़्यादा क्या ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। और वो कम्युनिटी के ओनरशिप वाला जो मुद्दा यहाँ पे आता है और उनके भागीदारी का जो मुद्दा आता है, वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये चैलेंज है, क्या हम इसको क्या हम इसको लेना चाहते हैं क्या, ये भी सवाल है। जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एज अ फंडर, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पीपल, क्या हम इस चैलेंज को लेना चाहते हैं। और उस तरीके से अगर इक्विटी सेंटर रिसर्च की अगर हम बात करते हैं या इसको लेकर हम बात करते हैं, तो ये सवाल हमारे सबके सामने भी है कि इसको हम कैसे लेते हैं और इसको कैसे लेते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखा। और ना माइंडसेट शिफ्ट की जब हम बात करें तो मुझे और एक बात ध्यान में आई, विच इज नॉट फॉर रिसर्च बट एक्चुअली मेनी टाइम्स फॉर्मल बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, मैंने देखा, ये मेरे मुमताज भी ये बात मानेगी क्योंकि ये हमारा अनुभव रहा है। क्वाइट ऑफन पीपल वांट टू वॉलंटियर but they come with a mindset, how I can help you, how I can help community. तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है, so when you come with that already unequal power relationship mindset है कि मेरे पास जो है वो मैं हेल्प के लिए तहत देने के लिए आई हूँ, तो that doesn't value the equality. तो उसमें तो मुझे लगता है कि इस तरह का, when we are talking about mindset shift, this kind of mindset shift which is ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मुमताज जी और सुजाता जी। और इस सेक्शन को क्लोज करने के लिए आई थिंक जो कॉमन थीम मुझे सुनाई दिया वो है अनइक्वल पावर डायनामिक है absolutely इस सेक्टर में। और इसे रिकॉग्नाइज हम करें कि हमारा पावर लॉपसाइडेड है जब हम कम्युनिटीज को अप्रोच करते हैं। ये भी कहना कि हम पार्टनर करना चाहते हैं, वहां पे भी थोड़ा अनइक्वल पावर डायनामिक है। तो स्टेप 1 तो लगता है कि इसे रिकॉग्नाइज करना और प्रोसेस में अलग अलग जगह पे कहाँ है। फिर स्टेप 2 हो जाता है कि क्या सोल्यूशन हो उसका। जो अगर स्टेप 1 ठीक से होगा रिकॉग्नाइज करना, तो आई थिंक सोल्यूशंस अपने आप धीरे धीरे उभर के आने लगेंगे। इसके साथ सुजाता जी, ये थोड़ा अगर आप भी बता पाए, मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको बताना चाहेंगे जो ऑडियंस में कि डालबर्ग और कोरो भी साथ में मिलके इस बारे में काम कर रहे हैं। हमने एक पार्टनरशिप बनाया है कि हम आगे आने वाले 1 से 1.5 साल में क्या मिलके इंक्लूसिव और मेथड्स डेवलप कर सकते हैं पार्टिसिपेटरी रिसर्च के। ये रीबैलेंसिंग ऑफ पावर डायनामिक्स का क्या मतलब है, इसको हम ऑपरेशनली कैसे डे टू डे काम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो रिसोर्सेज इससे उभर के आए इस पार्टनरशिप से वो कम्युनिटीज द्वारा को ओन कैसे हो सके और ना ही सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बीच रह जाए। पर सुजाता जी आप थोड़ा बताना चाहेंगे इसमें? I would only say at Coro, we are really excited with this partnership, the thought behind this partnership, and काफी इस पे डिस्कशन हुआ. Actually, both the teams have deliberated so intensely and so extensively, I think. So we are excited, and हम ये सोचते हैं कि actually we will jointly have something contributory to take it to the development sector through this partnership. कि ये किस तरह से करना है, इसके मायने क्या है, and we are bringing in our own perspectives, skills, both the organizations, and we will try and do फिर मैं वो seamless
सीमलेस इंटीग्रेशन वाला जो मुद्दा है उसको लाऊंगी कि जो भी दोनों के स्किल्स पर्सपेक्टिव है उसको how would we learn from each other actually primarily, because we are coming from two different spectrums of the society. So, and we are aware of that. So acknowledging that, so not coming from two different spectrums is no problem, but not acknowledging could be problem, but when you acknowledge that we have different skill sets, we are different people, but we have a strong desire and ambition to create something that is contributory to the sector together by bringing in our perspectives and skills. So उस तरह से and we are really excited about this partnership, and we really think that in say another a year and a half, and after that we should have something really meaningful, relevant, contributory to advocate for in the development sector with different elements of our larger ecosystem. And when I say larger ecosystem, it's development organization is there, corporates are there, academia is there, media is there. So we have like host of elements in our larger ecosystem, and we would have something really meaningful to deliberate with these elements. Members of the थैंक यू सो मच सुजाता जी एंड मुमताज जी। और यहाँ पे ऑडियंस में से भी किसी को इफ यू आर इंटरेस्टेड ज्यादा जानने के लिए, आप भी पार्टनर करना चाहते हैं, वी आर ओपन, प्लीज जस्ट राइट टू अस। हमारे ईमेल आईडीज एनीवेज है इस यहाँ पे वेबसाइट पे, विल बी हैप्पी टू फिगर अ वे। एंड टू close this session, we can take 1 to 2 questions. Yes, because we are little short of time. We stop sharing. जी हाँ, हम 1 से 2 क्वेश्चन ले सकते हैं और फिर इसको यहीं पे कंक्लूड करेंगे और क्लोजिंग के लिए ऑर्गेनाइजर्स को हैंड ओवर करेंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप प्लीज चैट में लिखिए या हैंड रेज कर सकते हैं। But while we get questions, thank you so much for attending this session. हमें अच्छा लगा आपने इस चर्चा में पार्ट लिया। मुमताज जी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, सुजाता जी इतना नुआंस्ड बातें कहने के लिए। हमेशा आपसे बातचीत होती है तो लगता है कुछ तो सीख के जा रहे वापस। हाँ, एक 2 क्वेश्चन है Q&A वाले टैब में। तो एक क्वेश्चन है सुजाता जी, मुमताज जी के, ये ठीक है कंसेप्चुअली बहुत अच्छा है, कम्युनिटी पार्टनर्स करो, हाइपर लोकल करिए। सच में ये कैसे हम लोग फाइंड करें, क्योंकि ये मुश्किल है, इसमें काफी बैरियर्स है और ट्रस्ट बनाना, मिल भी गए पार्टनर्स तो काफी मुश्किल है। तो कोई टिप्स या पॉइंटर्स है? आई थिंक काफी वैलिड क्वेश्चन है। एक चीज मैं छोटा चीज बताना चाहूंगा, बट आप प्लीज इसको थोड़ा इलैबोरेटली बताइए। एक चैलेंज हम जो फेस कर रहे थे कि शॉर्ट टाइम में ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल है, तो वो लोग किसे ट्रस्ट करते हैं? उनके साथ क्या आप पार्टनर कर सकते हैं? क्या वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या कोई और बड़ा एनजीओ है उस एरिया में जिसको वो ज्यादा ट्रस्ट करते हैं आपसे? तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं। वो काफी इंटरेस्टिंग एक तरीका है। दूसरा है, अगर ट्रस्ट बन गया तो ट्रस्ट एक टाइम एक्टिविटी भी नहीं रहेगा। अगर मैं उनके पास एक प्रोजेक्ट के बाद 2 साल बाद गया तो वो ट्रस्ट वापस बिल्ड करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअसली कैसे हम टच में रह सकते हैं, ये 2 चीज हम ट्राई कर रहे हैं। पर आपको क्या लगता है सुजाता जी इसके बारे में? एक्चुअली यू हैव प्रेरक, आपने आंसर किया है उसका कि ये पार्टनरशिप्स के थ्रू, और जो आपका ट्रस्ट नहीं है लेकिन कम्युनिटी के लोग जिन पे ट्रस्ट करते हैं उनके साथ वो पार्टनरशिप करनी चाहिए। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग, तो उसको स्टार्ट करना चाहिए पहले, एंड देन देयर विल बी, you will partner, you will come to know कि अरे ये वर्कआउट नहीं हुआ, बट देन यू विल ऑल्सो लर्न कि किसके साथ नहीं करना है,
because there is no blueprint, I think, कि इसके साथ करो, कि इतनी सारी NGOs है, इतने सारे CBOs है. So I think one should start with possible alternative जो भी है उसमें से, and then learn through the process, because this is going to be a process. It's not like a snapshot वाली तो बात है नहीं. सुजाता जी, एक और सवाल है जो शायद ले सकते हैं, फिर क्लोज करते हैं, कि रिसर्च क्वेश्चन डिसाइड करते वक्त इक्विटी कैसे मेक श्योर करे कि वो उसमें है, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन में ही नहीं है तो आगे काम कैसे होगा? इसके बारे में आपके कोई विचार रहेंगे? I mean, I would say that is part of the perspective of the person. I mean, मुझे पता नहीं अभी कैसे लाना है इसके बारे में. मुमताज, तुम भी कुछ बता सकती हो तो बताओ. लेकिन मुझे लगता है कि it is, I would say it is also ethos of the agency, ethos, culture of the agency that will drive them to bring this equity in the research question. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से आप राइट्स बेस्ड काम की कामना नहीं कर सकते. So the formation of the organization, the ethos of, I mean, when I say organization, it can be agency, whatever, kind of. तो उस एजेंसी की फॉर्मेशन, उनका कल्चर, ethos, उनका पॉलिटिक्स क्या है. एंड आई सेड दैट अर्लियर ऑल्सो कि ये सब बातें पावर डायनेमिक्स में आप किसकी तरफ से हो, ये इस पे निर्भर होता है. आप किसको रिप्रेजेंट करते हो, आप किसके पर्सपेक्टिव से हर चीज को देखते हो, एंड दैट इज एम्बेडेड इन द कल्चर एंड इथॉस एंड इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी. तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है अभी एक्चुअली कि रिसर्च क्वेश्चन में उसको कैसे लाए, बिकॉज वो आ ही जाएगा. आई थिंक इसमें मैं थोड़ा बिल्ड करना चाहूंगा सुजाता जी कि कौन फॉर्म कर रहा है, क्वेश्चन बहुत जरूरी है. क्या एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं कि उसमें रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, और रिसर्च क्वेश्चन भी को डिजाइन हो सकता है, सिर्फ सोल्यूशन नहीं. तो क्या मैं क्वेश्चंस फॉर्म करते वक्त भी कम्युनिटी का इनपुट ले सकता हूँ या सर्टेन ग्रुप्स का इनपुट ले सकता हूँ बिफोर फाइनलाइजिंग? क्योंकि उन्होंने बताया वो यूनिवर्सिटी में है, तो डेफिनेटली पॉसिबल होगा वो इनपुट्स लेना. एंड व्हाट यू सेड इज रियली राइट. और वही मैं भी कहनी कि कौन रिसर्च क्वेश्चन के बारे में डिजाइन छोड़ो लेकिन सोच रहा है, कौन उस रिसर्च क्वेश्चन के बारे में सोच रहा है, ये बहुत अहमियत रखता है. बिकॉज इफ माई लेंस इज कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव, से फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लूजन वाला है, तो वो इंक्लूजन वाले क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन आएंगे ही नहीं. ओके, थैंक यू. हाँ, सॉरी प्लीज बताइए, मुझे लगा आपका हो गया था विचार. डन. हाँ, ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन. आई नो 5 होने आया, हमने 3-4 मिनट ज्यादा लिए हैं. एक फॉर्म का लिंक है चैट में, अगर आपको रिसोर्सेज जो हम इस सेशन के बाद इंक्लूडिंग स्लाइड डेक आप चाहेंगे कि हम आपके साथ शेयर करें, प्लीज उसको फिल कर दीजिए. अगेन थैंक यू सो मच सुजाता जी, मुमताज जी, चर्चा के ऑर्गेनाइजर्स और डालबर्ग की टीम जिन्होंने इतना साथ दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीबॉडी. And thank you, Parag. Thank you, Sujata ji, and thank you, Mumtaz ji, for such a wonderful session. I thought this was such an interesting and important conversation. For the last couple of days, as part of Charcha, we've really been talking about the importance of expanding our notion of what is gender and how to be gender inclusive. And I thought that what this training really did was help put a very practical light to how exactly to do that. By touching upon, how community partnership and research practices can really lead to greater diversity, equity, and inclusion in program and product design. What we've seen is that historically, the exclusion of women and other gender minorities as subjects of research, that's actually been to their detriment. Whether it's medicines or vaccines that aren't suitable for them, or smartphones that are too large for their hands, or airbags that are more of a danger to them than saving grace,
these practices actually led to poor outcomes. And that's why this session really, really matters. It's not just an academic conversation, it's one that has practical implications on people's lives. And our hope is that the discussions in Charcha this year have helped shed some more light on the kind of gender challenges that plague our society today. And we hope that this training offers some practical advice, wisdom, and tools that each of us can use as we try to overcome these challenges in our work. So thank you again for this session. And I wanted to take some time to close out the gender track for 2021. And I wanted to start by touching upon the work that we did last year. So for those of you who were part of last year's Charcha, you'll know that it was organized in record time in just a few weeks after the lockdowns were announced. And it was done because we saw how much COVID was impacting our society, and in particular the risks that it was creating for gender equality and setting back the progress that we had made. And for those of you who've been following along, you'll have seen study after study show the impacts of the crisis, and the disproportionate impacts of the crisis on on people of various genders. And what we did last year was that we really reflected on how COVID was impacting the lives of women and girls across areas such as economic participation, violence, child protection in the workplace, and we exchanged ideas on how we might better support and advance women in a post-COVID world. And in particular, we tried to do this in partnership with key stakeholders such as men and the government. And we hope that last year's conversation was helpful in supporting each of us who are working in this space and make things a bit better for women and gender minorities over the last year. This year, we wanted to do something a little bit different. As India is celebrating its 75th anniversary, we wanted to take a real step back and put this crisis in a broader historical context. And that's why we wanted to start by reflecting on what progress had been made and what challenges remain. And it was really important for us to discuss the aspirations of the youth and the future generations, because we wanted to think about, how do you translate the past into the future? And therefore, we also felt it was really important for this year's Charcha to go beyond the traditional conversations around gender, which to this day are still quite binary, to be really inclusive of gender and sexual minorities. And to that end, we made it a priority to hear from diverse voices, diverse from a gender and sexuality perspective, and diverse also in terms of the work that people do. And, to that end, we were able to hear from journalists like Kalpana Sharma, lawyers like Saurabh Kirpal, grassroots leaders like Sushma Moirali, who is the Sarpanch of the village in Maharashtra, and development sector leaders like Sohini from Breakthrough, who discussed what they saw as the most pressing gender issues today, and those that we'll have to navigate for tomorrow. And there was a lot to learn from them. I think some of the takeaways for me, at least, was that one, as we think about the last several decades, it's important to recognize, and sometimes this can be really hard when there's so much more to do, we have made a lot of progress in making our society more gender equitable. And so much credit goes to the grassroots movements that have been led by women and the LGBTQIA community, who have put pressure on institutions to listen to their demands and make necessary changes in policies and programs, all while serving as inspiration for the communities that they work in and serve. At the same time, we see that even today, women in professions like journalism and law, they continue to be stereotyped. They continue to be pigeonholed into what is considered, quote unquote, women appropriate sections of their professions. We heard about this over the course of yesterday and today. Desk reporting and journalism, family matters in the law. But some people are breaking the norm, and they really serve as role models to the rest of women in the professions that they, to aspire for more. I think they're also making a really important change in society in terms of making it more normal for others to be practicing in what are considered, quote unquote, women appropriate sections of their professions, right? Why shouldn't men be thinking about family matters in the law? Why aren't social issues considered to be equally as important as commercial issues? And so that translation goes both ways. At the same time, we also talked a lot about the concept of gender roles and how much it really begins from the time that we are children and the upbringing that we have that is responsible for the gender nature of so many aspects of our lives, from
household responsibilities, to how we earn, to our independence, to how bold we are, to our sense of self. And in order for us to address these kinds of issues, we really need to build in gender equitable values in children at a young age, whether at home or in school. And of course, we have to involve boys in these issues and these efforts as well. And I think that's a really important area for all of us to focus on, right? In terms of, how do we serve the next generation and how do we set up the next generation to build a more inclusive world than the one that we live in today. We also still see a lot of tokenism in today's world. And for us to be truly gender transformative, we must go beyond that. We must go beyond the tokenism. And I think it really comes down to this notion of listening. And one of the things that I observed in every single one of the sessions over the last 2 days was how excellent each panelist and participant was in terms of just listening to others, whether they had the similar opinion or not. And I think that was a good reminder that each of us needs to listen to the voices of people who are more oppressed than we are. Fighting against the patriarchy and the system, it needs women's voices to come out, not just in public fora, but they also need to be able to come out at home, in office spaces, and in personal lives. In order for that to happen, that means that each of us needs to create a safe space. And that path to inclusivity, it involves women and other genders taking up positions of power in business, politics, policy, media. And we've seen that when these such individuals are at the helm and in positions of power, that's when institutions can actually be more inclusive. And finally, we heard from women who are creating change on the ground. Their struggles were struggles for them, of course, but they were also a real source of strength. And that strength gave them the courage to stand up for themselves, but also for others. In short, we heard a lot of things from a lot of people, many of which were reminders of the progress we've made, the challenges that remain, the fact that every sphere of our society needs to see continued progress, and that each of us has a really important role to play, not just in our professional lives, but in our personal lives. And it's really about walking the talk. And so with that, I wanted to thank you all for joining Charcha and being a great and wonderful audience for our track this year. And as we close this session, I wanted to leave each of you with a few thoughts. This is a movement that isn't new. It's been around for decades, for centuries, and we've made progress. And, women are really economically, socially, and politically better off than they were decades ago. For the LGBTQIA community, societal taboos and their identities are now waning, and they're finally starting to enter the mainstream. But there's so much more to be done. The notion of what is a traditional woman, the unequal share of responsibilities that she has towards children, home, they're still intact in so many parts of our society. And at the same time, the LGBTQIA community still suffers from the lack of basic documentation, which again has really practical impacts like no access or little access to welfare services. And they continue to face discrimination from large sections of our society. And as I mentioned before, to truly move towards a more gender equitable world, we need each of you and each of us. We all have a voice and a role to play in achieving this role. And we have an influence in our immediate circles. While the more established actors, organizations, and activists in the gender movement, they continue to push for more equitable programs, the most critical aspect, it really is, it comes down to a change in mindset. And that comes from each of us and how we engage in our communities. And we hope that the future of Gender Track of Charcha this year, we hope that it helped offer just a space for reflection, a place for you to think about your own lives and what you've experienced, and offered a little bit of inspiration about what you can do by bringing to forefront the gendered realities of today and the lives and lived experiences of so many trailblazers and leaders who've been thinking about and working towards building a more gender equitable world. And I hope, perhaps most importantly, that this track has helped each of us learn how to become better allies in the gender movement, learn how to do it better, unlearn some things that we've been doing perhaps poorly, and rebuild towards a better world. Thank you all for joining, and we hope to see you next year. Bye.